गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 के लोकार्पण के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी। भारतना गृहमंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्रीमंडल मारा सौ साथियों, गुजरात सरकार सौ मंत्रीओ, उपस्थित सौ सांसद साथी, धारासभ्यश्रीओ, सरदार धामना प्रमुख भाई श्री गगजी भाई, ट्रस्टी बी.के. पटेल, दिलीप भाई, अन्य सब महानुभावों અને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો અને ખાસ કરીને વાલી દીકરીઓ, સરદાર ધામનું નામ જેટલું પવિત્ર છે એટલું જ એનું કામ પણ પવિત્ર છે। આજે દીકરીઓની સેવા માટે, એમની શિક્ષા માટે એક હોસ્ટેલનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। જે દીકરીઓ આ હોસ્ટેલમાં રહેશે, જેમને અનેક પોતાના અરમાન હશે, પોતાના સપના હશે, એ પૂરા કરવાના અનેક અવસર મળવાના છે। અને એટલું જ નહીં, આ દીકરીઓ જ્યારે પોતાના પગ ઉપર ઊભી હશે, સામર્થ્યવાન થઈ હશે, ત્યારે રાષ્ટ્ર નિર્માણ પર પણ એમની અહમ ભૂમિકા સ્વાભાવિક બનવાની છે। એમનું કુટુંબ પણ સમર્થ બનવાનું છે। અને એટલા માટે હું સૌથી પહેલાં તો આ હોસ્ટેલમાં રહેવાનું જેમને અવસર મળવાનો છે, એવી બધી જ દીકરીઓના એમના ઉજ્જવલ ભવિષ્ય માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। એમના પરિવારજનોને પણ શુભેચ્છાઓ આપું છું। સાથીઓ, આ મારું સૌભાગ્ય છે કે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ ફેઝ 2નું એની આધારશિલા મૂકવા માટે આપે મને અવસર આપ્યો હતો। અને આજે સમાજના ભગીરથ પ્રયાસોથી 3000 દીકરીઓને માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા, ઉત્તમ સગવડ સાથે આ ભવ્ય ઇમારત એમને મળી રહી છે। મને કહેવામાં આવ્યું કે વડોદરામાં કંઈ 2000 સ્ટુડન્ટ્સ માટે હોસ્ટેલનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે। સુરત, રાજકોટ, મહેસાણા, એમાં પણ આ પ્રકારના એજ્યુકેશનના, લર્નિંગના, ટ્રેનિંગના એવા અનેક સેન્ટર્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। આ બધા પ્રયાસો માટે જે એમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે, એ સૌ અભિનંદનના અધિકારી છે। કારણ કે આપણો દેશ તો સમાજની શક્તિથી જ આગળ વધતો હોય છે। હું આજે આ અવસરે સરદાર સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું। સાથીઓ, જ્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો, ત્યારે હંમેશા કહેતો હતો કે ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। અને આજે સંજોગ છે કે દેશના વિકાસમાં ગુજરાતે મને જે શીખવાડ્યું, ગુજરાત પાસેથી હું જે શીખ્યો, એ બધું લેખે લાગી રહ્યું છે। તમે બધા જાણો છો કે આજથી 25-30 વર્ષ પહેલાં આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં અનેક પેરામીટરમાં કેટલીક બાબતો ચિંતાજનક હતી। ગુજરાત વિકાસની સાથે સાથે સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ અનેક સંકટોથી એની શક્તિ ખપાવી પડતી હતી, ચુનૌતીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો। અને એમાં હું તો જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો હતો, ત્યારે મેં પહેલી વાર મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે દીકરીઓ શિક્ષણમાં ખૂબ પાછળ છે। અને એ મને બહુ મારા મનને અસર કરી ગયું। અનેક કુટુંબો દીકરીઓને નિશાળ મોકલતા જ નહોતા। અને જે સ્કૂલમાં દાખલ પણ થાય, એ પણ વેળાસર ઉઠી જાય, ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય। 25 વર્ષ પહેલા આપ સૌએ મને સાથ આપ્યો અને આખી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ।
આપને યાદ હશે આપણે કન્યા કેળવણી રથયાત્રા કાઢતા. મને યાદ છે એ વખતે 40-42 ડિગ્રી તાપમાન હોય અને 13, 14, 15 જૂન ગામડાઓમાં જવું એટલે જવું, ઘેર ઘેર જવું એટલે જવું, દીકરીઓને આંગળી પકડીને નિશાળે લઈ જવી એટલે લઈ જ જવી. શાળા પ્રવેશોત્સવમાં કેટલા મોટા કાર્યક્રમો કર્યા. અને મારું સૌભાગ્ય છે કે આ કામે ખૂબ મોટો આપણને લાભ આપ્યો અને એનાથી આજે જરૂરત પડી તો શાળાઓના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બન્યા, શાળાઓને આધુનિક સુવિધાઓ મળી, બધી જ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ વિકસિત થઈ ગઈ, શિક્ષકોની ભરતી થઈ ગઈ અને સમાજે પણ એમાં ખૂબ આગળ આવીને ભાગ લીધો અને જવાબદારી નિભાવી અને પરિણામે આવ્યું. આજે એ દીકરા દીકરીઓ જે શરૂઆતમાં આપણે દાખલ કર્યા ને, કોઈ ડૉક્ટર બની ગયા છે, કોઈ એન્જિનિયર બની ગયા છે, ડ્રોપ આઉટ ઘટી ગયો છે, એટલું નહીં, આખા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે અભ્યાસની ભૂખ જાગી ગઈ. બીજી એક ચિંતા મોટી હતી, ભ્રૂણ હત્યાનું પાપ. આ એવડો મોટો કલંક આપણા ઉપર હતો અને ઘણીવાર તો આપણા સમાજમાં તો ખૂબ ચિંતા થતી હતી. આના સામે સમાજે મને મોટો ટેકો કર્યો અને આખું આંદોલન ઊભું કર્યું. આપણે સુરતથી એક યાત્રા કાઢી હતી, ઉમિયા માતા સુધી લઈ ગયા હતા. બેટા બેટી એક સમાન આ ભાવનાને આપણે વધારે મજબૂતી આપી અને આપણું ગુજરાત તો શક્તિની ઉપાસના કરનારું ગુજરાત. અહીંયા અમારે ત્યાં ઉમિયા માતા હોય, માં ખોડલ હોય, માં કાળી હોય, માં અંબા હોય, માં બહુચર હોય અને એના આશીર્વાદ હોય. એ સમાજમાં ભ્રૂણ હત્યા એક કલંક હતી અને જ્યારે આ ભાવના જાગી, બધાનું સમર્થન મળ્યું, આજે ગુજરાતમાં દીકરા દીકરીઓની સંખ્યામાં ભેદ જે ખૂબ મોટી ખાઈ હતી એને ધીરે 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 આપણે કાપવામાં સફળ થઈ રહ્યા છીએ. સાથીઓ, મોટા ઉદ્દેશો સાથે જ્યારે પ્રયાસો કરવામાં આવે ને અને પવિત્રતાપૂર્વક કરવામાં આવે, સમાજનું ભલું કરવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવે, તો ઈશ્વર પણ સાથ આપતો હોય છે ને ઈશ્વર રૂપી સમાજ પણ સાથ આપતો હોય છે અને પરિણામ મળતું હોય છે. આજે સમાજમાં એક નવી જાગૃતિ આવી છે. આપણે જાતે આગળ આવીને દીકરીઓને ભણાવી, દીકરીઓનું માન સન્માન વધે એના માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરે, ભવ્ય ભવ્ય હોસ્ટેલો બનાવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં જે બીજ આપણે વાવ્યું હતું એ આજે પૂરા દેશમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ એક જન આંદોલન બની ગયું છે. મહિલાઓની સુરક્ષા માટે, મહિલા સશક્તિકરણ માટે દેશમાં ઐતિહાસિક નીતિઓ પર આજે કામ થઈ રહ્યું છે. આપણી દીકરીઓ, ઓપરેશન સિંદૂરની વાત આવે ત્યારે દીકરીઓનો અવાજ સંભળાતો હોય, એમના સામર્થ્યની વાત આપણા કાને પડતી હોય. ગામડાઓમાં લખપતિ દીદી 3 કરોડનો લક્ષ્ય તો 2 કરોડ તો પહોંચી ગયા. ડ્રોન દીદી સમગ્ર ગામની અંદર બહેનો તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો. બેંક સખી, વીમા સખી, એવી અનેક યોજનાઓ આજે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ આપવામાં આપણી માતૃશક્તિ કામ કરી રહી છે. સાથીઓ, શિક્ષણનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ સમાજમાં સકારાત્મક યોગદાન દેનાર લોકોનું નિર્માણ કરવાનું છે, એવા લોકોની યોગ્યતા વધારવાનું છે. ખૂબ તેજ ગતિથી આજે જ્યારે આ બધી બાબતો આપણે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ ખૂબ પ્રાસંગિક થઈ ગઈ છે. હવે આપણી વચ્ચે સ્કિલની સ્પર્ધા હોવી જોઈએ, હુનરની સ્પર્ધા હોવી જોઈએ. અને સમજતા સમાજની તાકાત તો હુનર જ હોય છે. આજે સ્કિલ મેન પાવર પૂરી દુનિયામાં ભારતના સ્કિલ મેન પાવરની માંગ છે. દશકો સુધી ભૂતકાળમાં સરકારોએ આ ચીલાચાલુ શિક્ષણ પદ્ધતિનો અમલ કર્યો. આપણે એમાં ખૂબ મોટો બદલાવ લાવ્યા છીએ. આ જૂના જે ઘરેડ હતી ને એમાંથી બહાર નીકળીને હવે આપણે પરિસ્થિતિને બદલી રહ્યા છીએ અને નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ જે આપણે લાગુ કરી છે
આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં સૌથી મોટું આપણું બળ છે એ સ્કિલ ઉપર છે, હુનર ઉપર છે. સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશન આપણે લોન્ચ કર્યું છે. આ મિશન અંતર્ગત કરોડો યુવાઓને અલગ અલગ ફિલ્ડમાં સ્કિલ્ડ મેન પાવર તૈયાર થાય એના માટે કામ કરી રહ્યા છે. દુનિયામાં મોટી માંગ છે. દુનિયાનો એક મોટો ભાગ આજે એજિંગના પ્રોબ્લેમમાંથી ફસેલો છે. એને યુવાનોની જરૂર છે અને ભારત પાસે વિશ્વને આપવાનું આ સામર્થ્ય છે. આપણા યુવા સ્કિલ હોય તો એમના માટે રોજગારની પણ અનેક સંભાવનાઓ બનતી હોય છે. એનો આત્મવિશ્વાસ છે, આત્મનિર્ભર બને એના માટેનું સામર્થ્ય એમાંથી આવતું હોય છે. અને સરકારનું ખૂબ જોર યુવાઓને રોજગાર, વધુમાં વધુ રોજગાર, એના અવસર ઊભા કરવા માટેનું છે. 11 વર્ષ પહેલા આપણા દેશમાં ગણ્યા ગાંઠા સ્ટાર્ટઅપ હતા. આજે ભારતમાં સ્ટાર્ટઅપની સંખ્યા લગભગ 2 લાખ પહોંચવા થઈ છે. અને એમાંય ટિયર 2, ટિયર 3 આપણા ત્યાં નાના નાના શહેરોમાં આ સ્ટાર્ટઅપ ઊભા થવા માંડ્યા છે. આપણે એક મુદ્રા યોજના ચાલુ કરી. બેંકમાંથી લોન મળે, વગર ગેરંટી લોન મળે. આના કારણે 33 લાખ કરોડ રૂપિયા, વિચાર કરો, 33 લાખ કરોડ રૂપિયા યુવકોના હાથમાં સ્વરોજગાર માટે આપવામાં આવ્યા છે. અને એના કારણે આજે લાખો યુવાનો પોતે તો આત્મનિર્ભર બન્યા છે, પણ પોતાની સાથે 1-2 લોકોને બીજાને પણ રોજગાર આપી રહ્યા છે. અને તમને ખબર છે, આ વખતે 15મી ઓગસ્ટે મેં કહ્યું હતું અને એક યોજનાની મેં જાહેરાત કરી હતી, 15 ઓગસ્ટે લાગુ થઈ ગઈ. પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની યોજના છે. અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કોઈને પણ તમે નોકરી આપો એટલે પહેલા પગારમાં 15,000 રૂપિયા સરકાર એને આપશે. સાથીઓ, આજે દેશમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટનું જે કામ ચાલી રહ્યું છે, રેકોર્ડ ગતિ પર ચાલે છે. પીએમ સૂર્યઘર મુફ્ત બિજલી યોજના, આના કારણે તો સોલાર સિસ્ટમ લગાવવાનું કેટલા મોટા પાયે કામ ચાલી રહ્યું છે. ભારતમાં ડ્રોન અને ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, એમાં લગાતાર વધારો થઈ રહ્યો છે. અને સરકારનું ખૂબ મોટું ફોકસ, સરકારનું જોર મિશન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર છે. આવા બધા અભિયાન ગુજરાતમાં પણ રોજગાર માટે નવા નવા અવસર પેદા કરે છે. સાથીઓ, દુનિયા આજે ભારતના શ્રમની સાથે સાથે ભારતની પ્રતિભાના ખૂબ ઊંચી આંકે છે, એના મહત્વને સમજે છે. અને એટલા માટે દુનિયાના અલગ અલગ દેશોમાં અનેક નવા અવસરો તૈયાર થઈ રહ્યા છે. આપણા યુવાનો હેલ્થ કેર, એજ્યુકેશન, સ્પેસ જેવા અનેક સેક્ટરોમાં પોતાની છબી દુનિયાને ચકિત કરે એવી રીતે છોડી રહ્યા છે. સાથીઓ, આ વર્ષના સ્વતંત્રતા દિવસ પર મેં લાલ કિલ્લાથી સ્વદેશી ઉપર ખૂબ જોર મૂક્યું છે, ખૂબ આગ્રહ કર્યો છે. ભારત આત્મનિર્ભર બનવું જોઈએ ભાઈ. અને આજે આટલા સમાજના બધા લોકો મારી સામે બેઠા છે. ભૂતકાળમાં મેં તમને બધાને જે કામ કહ્યા, આંગળી ચીંધવાનું ભલે મને પુણ્ય મળ્યું હોય, પણ મારે આજે કહેવું પડે કે તમે દરેક કામ માથે લીધા અને મને પૂરા કરીને બતાવ્યા છે. અને 25 વર્ષનો મારો અનુભવ છે કે મારી એક પણ અપેક્ષા તમે પૂરી ન કરવી એવું બન્યું નથી. અને એટલે મારી ભૂખ પણ જરા વધી જાય છે. દરેક વખતે કંઈ ને કંઈ કામ તમને કહેવાનું મન જ થઈ જાય છે. તો આજે ખાસ એક વાત કરવી છે. આજના વિશ્વની જે અસ્થિરતા છે, એમાં ભારત માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે આત્મનિર્ભર બનવાનો. આત્મનિર્ભર ભારતનો મતલબ છે કે આપણે સ્વદેશી બાબતના આગ્રહી બનીએ. મેક ઇન ઇન્ડિયા, એના માટે થઈને આપણો ઉત્સાહ વધવો જોઈએ. સ્વદેશીનું આંદોલન એ કોઈ 100 વર્ષ જૂનું આંદોલન નથી. આપણા ભવિષ્યને મજબૂતી આપવા વાળું આંદોલન છે.
અને એનું નેતૃત્વ આપે કરવું જોઈએ. આપણા સમાજના જુવાનીઓ, દીકરા દીકરીઓએ કરવું જોઈએ. નક્કી કરવું જોઈએ હવે આપણા પરિવારમાં, આપણા ઘરમાં એક પણ વિદેશી ચીજ નહીં આવે. મેં તો વચ્ચે એકવાર કહ્યું વેડ ઇન ઇન્ડિયા. અનેક પરિવારો બહાર વિદેશોમાં લગ્ન નક્કી કર્યા, કેન્સલ કરીને ભારતમાં આવીને હોલ બુક કરીને ભારતમાં લગ્ન કર્યા. તો જેમ એકવાર વિચાર કરીએ ને એટલે દેશ માટેની ભાવના આપોઆપ જાગતી હોય છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા, આત્મનિર્ભર ભારત, આમાં આપણા બધાની સફળતા રહેલી છે, આપણા બધાની શક્તિ રહેલી છે. આપણી આવનારી પેઢીઓનું ભવિષ્ય એમાં સચવાવાનું છે. અને એટલા માટે નક્કી કરજો મિત્રો, હંમેશા. અને એકવાર ભારતની ચીજો લેવા માંડીશું ને એટલે એમાં ક્વોલિટીમાં સુધારો ઉત્તરોત્તર થવાનો જ છે. કારણ કે માર્કેટમાં બધાને ટકવું એટલે બધા સારું બનાવે, સારું પેકેજિંગ કરે, સસ્તું આપે. અને એટલે આપણે આપણો રૂપિયો બહાર જાય એ હવે આપણને પાલવે નહીં. અને મને વિશ્વાસ છે કાંઈક જે નાનકડું કામ મેં તમને સોંપ્યું છે, સમાજમાં એક આખું યોજના બનાવીને, જાગૃતિ લાવીને આપ સૌ બધા પૂરું કરશો અને દેશને એક નવી શક્તિ આપશો. અને વેપારીઓને પણ મારી વિનંતી છે, હવે આપણો સમાજ કે ખાલી ખેડૂત નથી રહ્યો, વેપારી પણ થઈ ગયો છે. વેપારી તરીકે મારું કહેવું છે, આપણે બોર્ડ મારીએ કે મારી દુકાનમાં માત્ર સ્વદેશી જ વેચાય છે. જેને સ્વદેશી ખરીદવું હોય મારે ત્યાં આવો. અને આપણે પણ સ્વદેશી માલ જ વેચવો જોઈએ. આ પણ દેશભક્તિ જ છે. ખાલી ઓપરેશન સિંદૂર જ દેશભક્તિ છે એવું નહીં, આ પણ દેશભક્તિ છે. અને મારી આ લાગણીને તમારા સુધી હું પહોંચાડું છું. આપને જરૂર વાચા આપજો, કંઈ ને કંઈ યોગદાન કરજો. આપ સૌની વચ્ચે આવવાનો મને અવસર મળ્યો. હું ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર માનું છું અને ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું. અને દીકરીઓને મારા અનેક અનેક આશીર્વાદ. नमस्कार. तो अहमदाबाद स्थित सरदार धाम परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास के दूसरे चरण के लोकार्पण समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला के सशक्तिकरण के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हो, जिसमें ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो या फिर बीमा सखी हो, तमाम सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था वो अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देकर के हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि हम सभी स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, जिससे कि हम भारत के रुपये को मजबूत कर सकें और मेक इन इंडिया पर जोर देकर हम सामूहिक रूप से प्रयास करके भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसका निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आंक रही है और इसे और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विट्ठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर फोकस किया गया। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य का जिक्र किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए महापुरुषों के भाषण देश भर की विधानसभाओं में संकलित हों, जिससे देश के युवाओं और विधायकों को प्रेरणा मिले। कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत ने अपनी विधायी परंपरा को संजो कर रखा है। विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सेवक माना जाता है और निष्पक्ष फैसले लेता है। कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विट्ठल भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में वीर विट्ठल भाई पटेल ने अध्यक्ष पद की गरिमा और निष्पक्षता को परिभाषित किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। वीर विट्ठल भाई पटेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा एक प्रदर्शनी और एक डाक टिकट स्मारक के रूप में, जिसका गृह मंत्री जी ने विमोचन किया है, वो आपके समक्ष है। अपने कार्यकाल में विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष पद की गरिमा, निष्पक्षता और साहस से परिभाषित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि स्पीकर किसी दल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और मर्यादा के निष्पक्ष संरक्षक होते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद और विधानसभा संसदीय लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा, संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए
लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विट्ठल भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे संसद, विधानसभाएं और विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं। हमारी संसद, विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं और आप सभी इन निर्वाचित निकायों के पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी लोकतंत्र संरचना को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इट वॉज इस बिल्डिंग that Shri Vallabhbhai Patel served as the presiding officer of the Central Legislative Assembly. Being present in this historic complex today is a matter of pride for us. यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं। इस अधिनियम के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। करने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हर राज्य कर रहे हैं और उसमें तो बहुत राज्य इसका स्वागत किया है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी इसका स्वागत किया है। कारण क्या है? ये करने से एलिजिबल लोगों को मिलेगा, नॉन एलिजिबल लोगों को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को राशन देना उचित है क्या? हमने क्या बोला है, इनकम टैक्स देने वाले इतने लोग हैं, उनके नाम पर राशन कार्ड है, BPL कार्ड है, APL कार्ड, जो भी कार्ड है, अंत्योदय योजना का कार्ड है। यू डिसाइड वेदर यू वांट, बिकॉज क्राइटेरिया जो फिक्स होता है, हमने जो 50% और 75% जो किया है फॉर अर्बन, 50% रूरल, 75%, इसके आधार पर हमने जो डाटा दिया है उसमें किसको देना है काम उनका है। और 1 kg भी हमने कम नहीं किया। एक बेनिफिशियरी को अभी तक हटाए नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हमारा जो अलोकेशन है, ये अलोकेशन हम हर महीने, हम तो
अलोकेशन 1.41 करोड़ लोगों को 72,500 मेट्रिक टन हम हर महीने दे रहे हैं। व्हाट डज इट प्रिवेंट फ्रॉम हिम डूइंग ऑल दिस थिंग्स? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों का खंडन करते हुए प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि पंजाब के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलेगा, इसमें एक भी संख्या की कमी नहीं होगी। का 2023 में अप्रैल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमने सब राज्यों को ई-केवाईसी करने के लिए कहा है। तो लास्ट डेडलाइन फॉर दी ई-केवाईसी वाज 30th जून 2025 है। तो अभी तक पंजाब सरकार भी 90% ई-केवाईसी किया है। मीन्स पंजाब में टोटल बेनिफिशियरीज है 1.41 करोड़ इज दी बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू दी 2013 का जो कानून है उस कानून के अनुसार 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज पंजाब में है। इसमें एक भी हमने कम नहीं की है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा था कि भाजपा की केंद्र सरकार पंजाब के 8 लाख से अधिक लोगों के राशन कार्ड काट कर लगभग 32 लाख लोगों को राशन से वंचित करने जा रही है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ई-केवाईसी के आधार पर किया है। जब ई-केवाईसी के डाटा मिला हमको, ई-केवाईसी के आधार पर जो भी इसमें इनकम टैक्स पे ये है, डायरेक्टर्स है, 4 व्हीलर है, ये सब लोगों का डाटा हमने उनको भेजा है। देखो भाई ऐसा है, आपको जो करना है आपके ऊपर है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें लॉबीज वर्क करते हैं। ये लॉबीज भ्रष्टाचार करते हैं। ये भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? इसको ना भगवंत मान को उत्तर देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कैसे भ्रष्टाचार किया, इसमें भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। इसी के कारण ये सब हो रहा है और कुछ कारण नहीं है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, हमने एक बेनिफिशियरी का बंद नहीं किया है। 1 kg राशन अभी तक हमने कम नहीं किया। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मेड दिस एलिगेशन, दैट ही हैज टू रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रतिदिन आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये लोग जहां जीतते हैं वहां इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के लिए तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के संपर्क में आकर उनकी बोली खराब हो गई है। जिस देश की जनता ने 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री चुना, उनके लिए तेजस्वी यादव अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माफी मांगे और राहुल गांधी की संगत में ऐसा न करे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जो लोग 2 जगह से मतदाता हैं, क्या उन्हें दोनों जगह वोट देने का अधिकार है? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्या वो मतदान दे सकते हैं? या फिर जो स्थानांतरित हो गए हैं, क्या वो वोट डाल सकते हैं? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है। मतलब बहुत माइनर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। जीत गया। क्या? 500। नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। पर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। दिखा जरा। ये तो पक्का फ्रॉड है। ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? भैया दिला दो ना। ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है, कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज बदलते बिहार की, जिसमें हर दिन हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कभी रोजगार की तलाश में अपने गांव, जवार, खेत खलिहान और अपनों का साथ छोड़कर बिहार से पलायन कर गए थे, और ये पलायन बिहार की नियति बन गई थी। लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। बिहार के कामगार देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार की खातिर कई समस्याओं से जूझते रहे। नियमित काम की समस्या, संवाद का माध्यम और घर आने जाने में अनेक दुश्वारियां। लेकिन अब बिहार के लोगों की दुश्वारियों के ये बादल बिहार में ही उन्हें काम मिल जाने से छट गए हैं। मुंबई से बिहार लौटे शियोहर के जब्बार बताते हैं, वहाँ बहुत सारा तकलीफ था, कभी स्ट्रगल करना पड़ता था आना जाना, और यहाँ घर के पास काम है, बहुत अच्छा व्यवस्था है और नज़दीक में घर है। 15 दिन में, हफ्ता दिन में जब मन होता है घर चले जाए, काम भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हर फैसिलिटी मिलता है। वहाँ आना जाने में प्रॉब्लम था, फिर वो काम का प्रॉब्लम होता है, इस तरह से काम नहीं मिलता था, कभी काम है कभी नहीं है। यहाँ रेगुलर काम रहता है, पैसे से कभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक। सिलाई क्षेत्र में कटिंग मास्टरी का काम करने वाले पटना के बिहटा निवासी जितेंद्र कुमार गुजरात से लौटे हैं। तमाम कठिनाइयों के पार अब उनके लिए बिहार में सब अच्छा है। यहाँ पर अब आया, बहुत सुविधा है, रहने पाने का। वहाँ गुजरात में बहुत दिक्कत होता था, बहुत तकलीफ सा, लेकिन ये अपना बिहार में आ गया हूँ, अपना अच्छा रोजगार मिल गया, अपना घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपना घर चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। सर बहुत अच्छा है यहाँ पर। हैदराबाद से बिहार लौटे ललित कुमार बताते हैं, ऐसा कि वहाँ जैसे कि बिहारियों को प्रॉब्लम करता था ना, लोग बोलने में, हर चीज़ में, रूम में, ये सब में उतना दूर जाए तो फिर परेशानी होता था 3-3 दिन जाने में। वो सबसे अच्छा है यहाँ बहुत अच्छा है। अपना गांव में मिल रहा तो अच्छी बात है ना। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है।
बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तो ये आप देख रहे थे हमारी खास सीरीज बात बदलते बिहार की, और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।